Okay, right. Let's start the show. Okay, so we are in the course which is known as Fari Nua. So you can see it's not Fari Neops. Actually, the pronunciation looks like Fari Neops, but it is actually uh, when I say this word, it will be known as Fari Nua. Okay, it's Fari Nua. Now, ये है क्या Fari Nua actually? Fari Nua is basically nothing but rice and pasta dishes. ओके, तो कोई भी इंडियन फेरेनुआ प्रिपरेशन का आप एग्जांपल दीजिए अगर आपका मन में कुछ है तो. फ्राइड राइस, ओके, फ्राइड राइस थोड़ा चाइनीज हो गया एकदम. बिरयानी, या बिरयानी Sir, idli. Sir, idli. idli although made from rice but it is come under the breakfast version, it is a snacks. Yeah, so biryani is an absolutely right option. और कुछ है? बहुत है, endless है. पुलाव. ओके, वेजिटेबल पुलाव, चलो ठीक है. एंड अरे बाप रे, इंडियन के बारे में नहीं मालूम है इतना कुछ तो आप लोगों को. तो मीठे चावल भी होते हैं. सॉरी, तो मतलब मीठे भी होते हैं चावल, मीठे में भी बनते हैं. सर बस जर्दा की बात कर रहे हैं. या जर्दा, yeah, there is something called jarda rice. Yeah, that is also. Meetha pulao is okay, is meetha pulao. You know, if you add mushroom, it will turn into a mushroom pulao. So let's always go for the tradition. When somebody asks you for a rice preparation example, always pick up the rice example which is traditional, that is originated from the India, just like a biryani. Okay. Then you got jarda. It's come from the Awadh, that is your Lucknow. Then there is something called Mangodi pulao that's come from the Rajasthan, a very famous dish. Okay, if you go to southern part of India, there is something called bisibili bhat. Mr. Royla Saivardhan is here? नहीं होगा शायद. Okay, चलो. Yes sir. Yeah. Royla Saivardhan, do you know what is bisibili bhat? No sir. क्या बात कर रहे हो? It's impossible. It's coming from your state. From Telangana sir. Yes, और क्या, हैदराबाद में मैंने बहुत खाया है इसको. बिसिबिली भात, इट्स मेड विथ योर राइस एंड खिचड़ी का एक मिक्सचर है. Sir, like jeera rice sir. No, it's not jeera rice, but it has a tempering of jeera, but it is made with every restaurant in Hyderabad used to serve that. Okay, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. It's known as a बिसिबिली भात, a very famous rice preparation from हैदराबाद. ठीक है, अब जैसे समझ लो बिरयानी के बारे में किसी ने कहा था, तो लेट्स टेक अ लुक. इंडिया में कितने टाइप ऑफ बिरयानी मिलता है? एनीबॉडी कैन से? चिकन दम बिरयानी. हाँ. हेलो सर, वेज बिरयानी. सर चिकन दम बिरयानी. चिकन दम बिरयानी, यस. जस्ट लाइक व्हेन आई वंस अगेन when I say types of biryani come from the come from the different regions of India. अब कोई ये बोल देगा चिकन दम बिरयानी, मटन बिरयानी, फिश बिरयानी, अंडा बिरयानी, ये बिरयानी का टाइप्स नहीं है. तो बिरयानी का टाइप क्या है? हाँ सर, हैदराबादी बिरयानी is an option. Another option, लखनऊ बिरयानी. Absolutely. अच्छा, कौन है वो? Sorry. Mumbai. Yeah, there is a biryani from Mumbai, which is known as a Bombay. Bombay. Sindhi biryani sir, Sindhi. Okay. Bombay biryani. Yes, right. If you go, somebody please mute the mic. Okay. If you go to so one is a Lucknow biryani, one is Hyderabadi dum biryani. Now understand one thing: when this Lucknow biryani comes to Calcutta, it is turned into a Calcutta biryani. क्या difference है? Difference ही है, लखनऊ बिरयानी के टेस्ट और कलकत्ता बिरयानी के डिफरेंस में टेस्ट में कोई एकदम फर्क नहीं है. एक सिंपल से डिफरेंस क्या होता है? इन कलकत्ता इफ यू ऑर्डर फॉर अ बिरयानी, चिकन दम बिरयानी, and you don't get egg or
अगर आपको साथ में boiled egg and you don't get a aloo, the biryani person, I mean like the person who is eating biryani will throw back to your face. So whether there is a chicken, mutton, that's not a big deal. At all the Calcutta biryani, it should have a aloo and also an anda. That makes it different. Now, if you go to Tamil Nadu, there is something called Thala Seri biryani. There is something called Thala Seri biryani, a very interesting style. It is when you eat biryani, you feels like you are having a sambar with rice. That's amazing. It's very nice. Okay. Then if you go to Jammu, there is something called एक कुछ है वहां पे वाजवान बिरयानी. So ऐसे करके बिरयानी के बहुत प्रिपरेशन है. Okay. जैसे कि समझ लो हैदराबादी बिरयानी is served with मिर्ची का सालन, whereas Calcutta biryani and Lucknow biryani is served with raita. Because the fact is Hyderabadi biryani is very, I mean like, okay, who can tell what is the difference between Hyderabadi dum biryani and chicken and Lucknow biryani? कौन बोल सकता है? कोई है? अगर नहीं जानते हो तो I can. Sir, the Hyderabad biryani is very strong in taste, but Lucknow biryani is light in taste. तो ये तो आप खाने के हिसाब से बोल रहे हो. मैं आपको सर पूछ के सर मैं डिफरेंस तो नहीं बता सकता, पर थोड़ा सा ये बता सकता हूँ कि लखनवी बिरयानी सर ऑयली नहीं होती, सूखे चावल टाइप होते हैं. ओके ठीक है. और उसमें मीट डला रहता है. हाँ उल्टा है. Lucknow biryani is Sir. very oily. Okay, there is a lady. Sir, actually, let the lady answer. Let the lady answer. Hello, there is a lady. Please, you can answer or otherwise. Okay. So, who is the next? Please carry on. can I say? Yeah, please. Sir, Sure, Hyderabad biryani sure. has spicy and has good color of saffron, sir. And Lucknow there's biryani had My friend, this is my turn. smooth and its meat Hello. marinated. Okay. So this answer I'll take. Hyderabadi dum biryani has got not a saffron नहीं होता है, but in Lucknow biryani, yes, there is a saffron. Right. Okay. I'll take this one. So, okay. Next. In a Yeah, please. sir, in a Hyderabadi biryani, they use the raw meat. They are not cooking. They are not cooking partially the meat. In Lucknow, they are cooking the meat partially. Means कि पहले चिकन बनाते हैं, फिर राइस बनाते हैं, फिर दोनों को assemble कर देते हैं. लेकिन वहाँ पर चिकन और राइस को दोनों को साथ में बनाते हैं. Absolutely. This is the answer I was looking for. Absolutely right. This is the right answer. Absolutely. But yes, I also take the saffron one. Okay. There was a lady who was pleading for answer. If she's still there, please answer. यस Okay. सर, मुझे भी सेम यही कहना please. था कि हैदराबादी बिरयानी को हम Please. लेयर्स के अंदर बनाते हैं एंड Yes, लखनवी true. बिरयानी हम No. एक खट्टा बनाते हैं और उसके अंदर यस सर. See, Hyderabadi biryani don't have a layer. Okay, understand one thing. Lucknowi biryani और Hyderabadi biryani को इसलिए कहा जाता है. Lucknowi biryani is known as पक्की गोश्त की बिरयानी. Lucknowi biryani is known as पक्की गोश्त की बिरयानी, whereas Hyderabadi biryani is known as कच्ची गोश्त की बिरयानी. कच्ची गोश्त की बिरयानी के मतलब क्या है कि मैंने जैसे होटल में देखा है, उन्होंने क्या किया, राइस को पहले सोक कर लिया. दे टेक अ राइस, पुट इट इन अ बिग बॉयलर. उसी राइस के अंदर उन्होंने क्या किया, चिकन को लेके मैरिनेट करके डाल दिया एंड दे ऐड ऑल द स्पाइसेस एंड हर्ब्स जो डालना होता है सब कुछ डाल दिया एंड दे पुट अ लीड एंड देयर इज अ डो लेके पूरे लीड को चारों तरफ से वो सील कर देते हैं. And this is the beauty, the experience of the chef is so high. After 45 minutes, he will open the container and the chicken will be cooked. If it's case of a lamb, it will take at least 1.5 hours. So 1.5 hour के बाद वो ढक्कन open कर देगा and then he will going to find the biryani scoop. Where in case of a Lucknow, it's completely layer style, where the chicken is cooked separately, rice is cooked separately. There is a chicken. So sorry, there is a rice, there is a chicken, there is a chicken, there is a rice, there is a chicken, there is a rice. ऐसे layers से वो होता है, इसलिए is a different. And yes, Lucknow biryani is very oily. Lucknow biryani has a nice smell of saffron. इसलिए Lucknow biryani को जब ढक्कन open किया जाता है, it is like it's engulfed the entire room. Whereas in case of a Hyderabadi, आपको smell कुछ feel ही नहीं होगा. Okay.
although I love the Hyderabadi biryani too much because of no smell. Actually, it is only for the there is rice and all. चलो ठीक है, वो मेरी चॉइस है, आपकी चॉइस कुछ और हो सकती है, दैट्स डिफरेंट स्टोरी. तो चलो पॉइंट पे वापस आते हैं. तो ऑल द राइस प्रिपरेशन यू कैन एड इट हियर. ओके, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, फेरेनुआ के 2 एग्जांपल दीजिए. जरूरी नहीं कि आप हमेशा वेस्टर्न फूड के बारे में आप लिखिए इंडियन फूड के लखनऊ दम बिरयानी व्हिच इज सर्व्ड विद रायता, हैदराबादी दम बिरयानी व्हिच इज सर्व्ड विद मिर्ची का सालन. दैट्स यू कैन राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम. इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड पास्ता. सो ऑल द पास्तास कम्स अंडर दिस कैटेगरी एक्चुअली. ओके, सो एनी पास्ता एंड राइस डिशेस हमेशा याद रखना. आज हम पास्ता के बारे में जानेंगे एंड वी आल्सो नो अ न्यू थिंग व्हिच इज नोन एज रिजोटो. तो बेसिकली फेरेनुआ के अंदर हमारे 3 कैटेगरी होता है. वन इज पास्ता, वन इज राइस एंड रिजोटो. तो पास्ता के बारे में तो हर बच्चा जानता है. यू नो, इटली में जैसे इंडिया का स्टेपल फूड है राइस एंड रोटी, इटली का स्टेपल फूड है पास्ता. लेकिन लोग कहते हैं कि इटली से ज्यादा पास्ता की जो सेल है वो इंडिया में होता है. इसलिए जितने सारे पास्ता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे हम लोग डेशेको एंड ऑल एवरीथिंग व्हिच इज इटालियन कंपनी, दे से इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन इंडिया रैदर देन इटली. बिकॉज अगर 130 करोड़ लोगों में से ओनली 10 करोड़ लोग अगर पास्ता ही खा ले तो उनकी कंपनी जो है वो बिलियनियर हो जाएगा. Whereas in case of Italy, it is a country of only 7 crore people, which is they don't have that profit from there. Now, then once again, acha, most important thing which you to remember right now is that the pasta is made, when you eat pasta, the fork will come on the right hand side and the spoon will come on the left hand side. दुनिया में हमेशा याद रखना, वो मेरे जो वीडियो है उस वीडियो में आप देखोगे कि जब there is a rice होगा, every time the spoon will be on the right and the fork will be on the left. When there is a pasta, only the entire thing will change. Okay, and then in case of a rice, obviously vice versa हो जाता है. राइस में आप फिर से वही स्पून राइट हैंड साइड में एंड फोक लेफ्ट हैंड साइड में. रिजोटो, आज हम एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे. व्हाट इज रिजोटो? मोस्ट ऑफ द लोगों ने सुना है वैसे रिजोटो के बारे में. आज हम थोड़ा हिस्ट्री जियोग्राफी के साथ इसको जानेंगे. या थैंक यू, आई नो पीपल हैव लर्नड. यस प्लीज. सर, एक क्वेश्चन था. अभी आपने जो रायते की बात की थी लखनवी बिरयानी के साथ, सर वो रायता कौन सा है? बूंदी, पकौड़ी, लौकी? ये बूंदी तो देखो, बूंदी तो अवध रीजन से बूंदी तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए अवध इज अ रीजन ऑफ मुगल्स. मुगल्स विल नेवर टच द बूंदी. बूंदी इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम राजस्थान, सो वो तो वही छोड़ दो. लौकी इज preferable. Jeera, I mean, like, you know, mixed vegetable raita, that is also preferable, like onion tomato ke sath. Or otherwise plain raita if you give. See what happens when you eat the Lucknowi biryani, what will happen, your stomach feel very much, you know, like full, because it's got a lots of ghee, saffron and all everything, and when it's go inside your stomach you will feel, oh my god, आज तो मैंने बहुत खा लिया. उसको मेलो डाउन करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्ड खाते हैं इसके बाद. लेकिन आप हैदराबादी बिरयानी एक बर्तन पूरा खत्म कर दो, आपको नहीं लगेगा, आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि मैंने आज कुछ हेवी फूड खाया है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ हैदराबादी बिरयानी. बट यस, टेस्ट वाइज ऑब्वियसली लखनऊ इज द फेमस इन इंडिया. ओके, राइट? तो नाउ या थैंक यू. चलो, तो रिजोटो के बारे में जैसे हम जानते हैं, रिजोटो और नॉर्मल राइस में डिफरेंस ये सर, लॉन्ग ग्रेन राइस होता है. ओके, थोड़ा सा मोटा होता है. एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि रिजोटो आता है लोम्बार्डी बोल के एक जगह है. I mean, like in Italy, there is a place called Lombardy, from where this, this famous rice preparation will come. तो रिजोटो को हम ये बोल सकते हैं कि इटाली का बिरयानी है ये. जैसे इंडिया का राइस प्रिपरेशन बिरयानी बहुत फेमस है, वैसे मतलब बिरयानी के साथ इंडियंस के बहुत सारे इमोशंस है. मतलब समझ लो कि अगर हम लोग अभी सब लोग अगर कॉलेज कल IHM ग्वालियर अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में ओपन हो जाए, सबसे पहले सारे फर्स्ट ईयर आएंगे और बोले चलो आज थोड़ा सा बिरयानी खा के आते, इतना दिन बाद हम ग्वालियर आए हम लोग, अगर हमारा पहला कॉलेज आज ओपन हुआ है, चलो लेट्स एंजॉय विद बिरयानी. तो सेम वे रिजोटो भी इटली का
बिरयानी, इट्स अ वेरी वेरी फेमस फूड। मतलब जब वहां पे लोगों की सेलिब्रेशन करने की मन करता है वहां पे, दे यूज्ड टू हैव अ risotto. It's come from the Lombardy region, the main prime food over there, and it is made with a butter, meat stock, broth and rice. Basically broth मतलब यहाँ पे meat stock ही हो गया, उसके साथ rice ऐड करो and then you add the parmesan cheese and white wine. ये सब कुछ आप एक साथ cook करते हो and then risotto you will make. So actually risotto when I mean अब risotto के बहुत सारे चावल है, okay, types of rice. जैसे कि इंडिया में how many types of rice? Sorry. सर जो रिजोटो होता है, जो उसका वो राइस का बीन होता है जैसे जो बनाते हैं, वो बहुत मोटा होता है ना? It's fat, it's very fat and thick and also slightly long. Okay, fat तो starchy होता है ना? Sorry. Yes sir. Yeah, risotto. Starchy. No, it's not a starchy. Basically मैं बोलता हूँ कि starchy तो जैसे समझ लो आप अगर हमारे जो इंडिया में जो राइस मिलता है, if you take that rice and you cook it for a long, जैसे कि क्या हुआ, ये जब इंडिया और क्या बोलते हैं इंग्लैंड का T20 मैच चल रहा था, तो उस टाइम ना अपना क्या बोलते हैं ऋषभ पंत बहुत अच्छे बैटिंग कर रहा था, तो मैंने चावल को गैस में लगा के मैं मैच देखने बैठ गया। अब वो मैंने चलो ठीक है 5 ओवर देखने के बाद ही मैं जाता हूँ। 5 ओवर देख के जब मैं गया, ओ माय गॉड, my all the water of the rice got soaked and the rice become completely sticky. मतलब वो खाने लायक तो था लेकिन बड़ा sticky हो गया था। When I put a dal on it, it feels like nothing actually. In case of risotto, exactly the same thing happen if you cook more. But generally क्या होता है कि because of starchy जैसे जिसने कहा है वो इसलिए होता है, there is a parmesan cheese, there is a butter also. Because risotto को इटली में इंडियन खिचड़ी कहा जाता है। रिजोटो को इटली में इंडियन खिचड़ी कहा जाता है। अब इंडियन खिचड़ी क्यों कहा जाता है, विल कम टू दैट। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिजोटो के राइस क्या क्या होता है। अच्छा पहले तो सब ये आप बोल सकते हो कि ये मुझे कहो इंडिया में कितने टाइप ऑफ राइस मिलता है। काली मूंग, रेड राइस, ब्लैक राइस। अच्छा ठीक है, ओके, फर्स्ट द लेडी विल स्पीक देन द सर रेड राइस, काली मूंग, ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, सोना मसूरी राइस, बासमती राइस। बासमती राइस, ठीक है, ओके चलो, और एनीथिंग एल्स, और कोई है। सर येलो राइस, सर रेड राइस, ब्लैक राइस, योलो राइस और अच्छा ठीक है, ओके, सर और बोलते हैं ना सर पीले चावल खा रहे हैं हाँ हम। पीले चावल खा रहा है, ठीक है, ओके, और वही सर वही येलो राइस, ठीक है, और कुछ है। सर Okay. जैस्मीन राइस, Jasmine rice जैस्मीन is, राइस, yeah, jasmine rice is from China. इंडिया में इंपोर्ट होता है, इट्स फ्रॉम चाइना, बट ये अभी जो राइस के नाम बताए वो वहां से, ठीक है। अच्छा एक बड़ा फेमस राइस है इंडिया में, वो किसी ने नहीं कहा। सर दावत राइस, सर सांबर राइस। Yes. Dawat rice, yeah. Dawat rice is the most expensive rice that is found in India, and also it is basically it's come from Kashmir actually, and थोड़ा सा Yes, sir, आपका Kashmir. या कश्मीर से भी आता है, पंजाब में थोड़ा सा होता है और यूपी में भी थोड़ा सा होता है। दावत राइस को मैं ये बोल सकते हो कि जैसे कि समझ लो दार्जिलिंग टी इज द मोस्ट बिरयानी राइस। या एब्सोल्युटली राइट। सो जैसे हम बोल सकते हो कि दार्जिलिंग टी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव राइस ऑन एक्सपेंसिव टी ऑन द प्लैनेट, सेम वे rice is also the like very expensive rice on the planet is available. And also remember one thing, it's a higher version of basmati. Dawat is a brand, that is true, Dawat is a brand, basmati is a type of rice which is sold by Dawat. But remember one thing, आज लोग ऐसा हाल हो गया है कि दावत ने जब ये नोएडा, उसके बाद अपना ये कुछ आगरा के आसपास एरिया में पहले इन लोगों ने प्लांटेशन स्टार्ट किया था, when the rice becomes so hit, उन्होंने बासमती की थ्योरी एक्चुअली यूज किया था, लेकिन उसके बाद उस चावल का नाम ही उन्होंने चेंज कर दिया। अब वो बोलते नहीं वो बासमती है ही नहीं, वो दावत है, लेकिन एक्चुअली वो बासमती है। बिरयानी का जो राइस है जो दावत एक्चुअली बेचता है वो बासमती है, ठीक है। चलो हम लोग तो घर में जब बिरयानी करते हैं तो वो नॉर्मल राइस से करते हैं,
लेकिन actually in the 5-star hotel if you go you'll find only dawat ka rice. Okay, right? But dawat rice Sir, please, in Punjab, in Punjab, sir, in Punjab and sir, in Punjab and Haryana, Mogra rice is also produced. Mogra rice. Yes, yes, heard about this man. जब मैं चंडीगढ़ में था या Sir, in Tamil Nadu, sambar rice is also very famous. सांबर राइस, Rice. ठीक है, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं Sambar, SAMBA. Okay, ठीक है, सांबर राइस, चलो ठीक है, done. So these are the types of rice. So it's very essential for the food production people and also FMB के लिए तो essential है, ठीक है, right? Okay. अच्छा, अब मैं आपसे एक जीके क्वेश्चन पूछूंगा. इंडिया का राइस बोल कौन से स्टेट को कहा जाता है? छत्तीसगढ़। Sir, Chhattisgarh. Sir, Chhattisgarh. West Bengal, sir, West Bengal. Sir, West Chhattisgarh. Bengal. नहीं, वेस्ट बंगाल. Sir, West Bengal. No. West Bengal is. Chhattisgarh. Chhattisgarh, sir. Chhattisgarh. Chhattisgarh, sir. UP. No. UP is famous for wheat. UP and MP ने 2020 को वर्ल्ड के लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूस किया था, मतलब इन क्वांटिटी. सो MP and UP the highest. Basically wheat is a national grain of Russia. wheat से एक्चुअली वोडका होता है. That's why रशिया का नेशनल ड्रिंक है वोडका. बट जनरली इस बार इंडिया ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया था 2020 को, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल. एनवायरनमेंट बिकम वेरी नाइस, सो द व्हीट वाज अबंडेंट. ओके, तो राइस नहीं है. अच्छा, छत्तीसगढ़ पक्का है? श्योर? Yes, Sir, Uttar Pradesh. Yes, sir. Yes, sir. West Bengal. वेस्ट बंगाल तो एकदम नहीं है, वेस्ट बंगाल एकदम नहीं है. ओके, Sir, I thought Because- Uttar Pradesh. Sir. no, because I know this thing. People will say that Andhra and Telangana actually mix करके पहले था Andhra this thing. So Yes, that sir, is when- the right. When ठीक है, two सर. states are divided, अच्छा, it's not ओके, अभी divided to be. या अभी तो दो स्टेट डिवाइड हो गया ना, इसलिए दैट Yes, sir. the rate has down. Yeah, now the Chhattisgarh become the top one. ठीक है, चलो तो let's take छत्तीसगढ़. चलो, आप थैंक यू वेरी मच पीपल. आप लोगों से मेरी एक गलतफहमी दूर हो गया. चलो ठीक है, डन. ओके, तो देयर इज अ रिजोटो राइस. तो हम देखते हैं पहले रिजोटो राइस कितने टाइप के होते हैं. एक होता है एर्बोरियो. दैट्स हाउ द एर्बोरियो राइस लुक रहा है. ये देखो आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा अभी. ऐसा होता है एर्बोरियो राइस को देखने में, बहुत ही थिक होता है ये, ठीक है. Next we got baldo. That's how your baldo looks like. Slightly थोड़ा सा पतला है ये. And then there is something called carnaroli. Okay, all the name are Italian, something like this, but it's थोड़ा सा brownish color का होता है. But arborio is widely consumed all over the globe, and carnaroli is a brown version, so that's why there is a health benefits are there. That is why it is being sold. But arborio is a very famous, and it is abundantly made in Italy and also in India. If you go to a hotel, आपको वहाँ पे arborio rice दिखेगा. So arborio is a type of risotto rice. It's a very very important campus interview question as well as for the examination. के लिए कितना important है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कैंपस इंटरव्यू के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, राइट? ओके पीपल, प्लीज शेफ्स एंड ऑल, जितने सारे शेफ है और जितने सारे एफएमबी के पर्सन है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आर्बोरियो. ठीक है, ऑल राइट. अब हम देखते हैं रिजोटो होता क्या एक्चुअली, कैसे देखने में होता है. सो ये देखिए, रिजोटो एक्चुअली ऐसा होता है. तो इसको अगर आप देखोगे तो खिचड़ी, ये साइड में आपका खिचड़ी है और ये आपका रिजोटो है. ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस. Just because खिचड़ी is like this, because there is a दाल, इसके अंदर दाल है इसलिए इसको देखने में ऐसा होता है. और यहाँ पे क्या है देखिए, बेसिल लीव्स है and there is lots of cream, butter and parmesan cheese, and that's why this looks like a very very sticky. तो वो जिसने कहा था कि स्टार्ची हो जाता है, स्टार्ची होने का कारण बस यही है. The reason behind this, we add all this thing, and this rice is not boiled separately. इसको ध्यान में रखना है. इसको बस they will take a water, I mean like जो meat stock है, meat stock has got lots of water. In that stock only this arborio rice is cooked with cream, butter, onion and all this thing. Okay,
It's a very very nice rice preparation, but at the same time remember it's very very heavy. ठीक है. टाइप ऑफ रिजोटो क्या हो सकता है? जैसा मतलब मशरूम रिजोटो है, रिजोटो आला मिलानेस. नाउ इस शब्द का मतलब क्या है? आप समझ लो आपके सामने हैदराबादी दम बिरयानी रखा हुआ है, तो जब आप इस हैदराबादी दम बिरयानी को इटली में लिखेंगे तो क्या होगा? बिरयानी आला हैदराबादी. इसका मतलब यह है कि रिजोटो आला मिलानेस. अब मिलान इटली में देयर इज अ फेमस सिटी जहां से हमारे दो फेमस फुटबॉल क्लब्स आता है. क्या नाम है उन दोनों फेमस फुटबॉल क्लब्स का? कोई बोल सकता है? AC Milan. एंड मिलान एफसी. या AC मिलान एंड दूसरा वाला नहीं पता. okay, so one is AC Milan and the other one is Inter Milan. It's like a, India Pakistan fight when they encounter together. So risotto made according to the Milanese style. इसका मतलब है risotto बनाया गया है मिलान के लोगों के स्टाइल के हिसाब से. जैसे बिरयानी आला लखनऊई, बिरयानी आला हैदराबादी, बिरयानी ala Calcutta, something like this. The same way, the next one is risotto alla Barolo. A Barolo is not a place. Barolo is basically like एक जैसे कि समझ लो जैसे कि आपका ये माउंट विसुवियास है. माउंट विसुवियास इज अ फेमस वॉल्केनो इन इटली. जैसे कि वो एक मूवी आया था बहुत दिन पहले, पॉम्पेई. अगर किसी ने देखा हो तो पॉम्पेई में दिखाया गया है कि कैसे yes sir. या राइट. सो पॉम्पेई में ऐसा दिखाया गया है कि एक वॉल्केनो ने कैसे एक शहर को बिल्कुल मतलब ग्राउंड जीरो में लेके आ गया. देयर वाज नथिंग लेफ्ट. ओके, इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक दिस थिंग हैपेंड. तो माउंट विसुवियास जो इटली का जो वो है वॉल्केनो है, उसकी चारों तरफ एक गांव है जिसका नाम है बरोलो. बरोलो से एक फेमस वाइन भी आता है. सो बरोलो के स्टाइल के हिसाब से रिजोटो बनाया गया है. बेसिकली बरोलो में क्या होता है, देयर इज अ बीन्स, एक बीन मिलता है, उस बीन्स का नाम है बोर्तोलोती बीन्स. ओके, उस बीन का नाम है बोर्तोलोती बीन्स. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड फेवा बीन्स, बोर्तोलोती बीन्स. ओके, बोर्तोलोती. I repeat again, it's Bortolotti. Bortollollity. Okay? So Bortolotti beans, that beans is actually used to make the risotto. So that is why it is known as risotto alla Milanese. Okay? Right? So now it's clear. We all know about pasta. Pasta के बारे में तो कोई बोलने की जरूरत है ही नहीं. इसके बाद next we have got risotto. अब एक और interesting चीज आपको मालूम होने जाएगा. चलो देखो. gnocchi. GNOCCH. Yes, sir. Yeah, absolutely. So people might have. This is the handmade pasta. Yeah, this is a handmade pasta. Fantastic, right? Yeah, gnocchi. The next one is very interesting. Gnocchi. अब gnocchi बनता कैसे है? ये पास्ता जो है basically it's made from potato, egg and semolina. तो आपको semolina का फ्लावर लिया जाएगा, उसके अंदर आप पोटैटो को मैश करके, जैसे कि समझ लो हम लोग घर पे आलू के पराठे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले उसको, आपके मम्मी क्या करती है, डो बनाने के बाद we will add some mash आलू इनसाइड and then we उसको क्लोज करके ऐसे बेल के we'll put it. Same way here we first make a semolina flour से एक डो बनाने के बाद उसके अंदर हम मैश पोटैटो, पार्मेजान चीज एंड एग्स हम ऐसे डाल देते हैं. एंड देन आफ्टर दैट इट्स कम्स लाइक दिस. छोटे 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 डम्पलिंग्स में उसको हम काट देते हैं. ओके, दैट विल टर्न इनटू योर gnocchi. So gnocchi is basically a very famous preparation that comes from the Tuscany. Now another famous region of Italy known for food and wine, Tuscany. Okay, Tuscany is a place where you can get the world's most expensive red wine. Okay, and also same time it is a famous region for pizza, and also there is something called gnocchi and all. Okay, so in gnocchi mein basically kya hota hai, it is made with a spinach gnocchi and also it can be a mushroom gnocchi. तो आप सोच रहे होंगे सर ये खाते कैसे, कच्चा कच्चा डो खा लेते क्या? वैसे अगर मेरे को कच्चा डो दिया जाएगा मैं तो खा लूंगा, क्योंकि मुझे कच्चा gnocchi खाने में बहुत अच्छा लगता है.
बट जनरली क्या होता है कि इट इज कुक्ड इन अ सॉस। आप समझ लो सॉस क्या है, आप जैसे जानती हो कि सॉस से समझ लो देयर इज अ बेशमेल सॉस, देयर इज अ रेड कोई टमाटो सॉस हो गया, ओके, देयर इज अ मेयोनीज, चलो छोड़ दीजिए, मेयोनीज इस पे नहीं आएगा। इट इज सर्व्ड विद एनी काइंड ऑफ सॉस। तो बेसिकली देयर इज अ सॉस कॉल्ड नेपोलिटाना, देयर इज सॉस कॉल्ड अल्फ्रेडो, all this thing basically any kind of Arrabbiata. sorry Alfredo and Arrabbiata, sir. yeah, Alfredo and Arrabbiata, these are the type of sauces in which the gnocchi is actually cooked and then it is been served. अब अगर कोई ये कहेगा कि रिजोतो gnocchi पास्ता का अकम्पेनिमेंट क्या है, मुझे लग रहा है ये बोलने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है, सब खाते हैं। ये क्या है रिजोतो gnocchi पास्ता का अकम्पेनिमेंट, कौन बोल सकता है? Sir, tomato sauce. सॉरी, Sir, tomato sauce. Tomato and Garlic bread. नहीं, टमाटो सॉस तो कभी नहीं। हाँ, ओके, रिपीट अगेन, somebody say something. Garlic bread. Garlic bread. Yes, garlic bread. That's right. Garlic bread, simple thing. टमाटो, देखो पीपल, जिन लोगों ने टमाटो सॉस खाया उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी रिजोतो स्टिकी है, gnocchi के अंदर सॉस है, पास्ता के अंदर सॉस है, तो मैं टमाटो सॉस क्यों लूंगा? मैं गार्लिक ब्रेड ले सकता हूँ। देयर इज, देखो गार्लिक ब्रेड, अब देखो डिफरेंस इस चीज को समझ लेना, अकम्पेनिमेंट और कॉन्डिमेंट, ठीक है? गार्लिक ब्रेड इज एन अकम्पेनिमेंट, क्योंकि हम एक चम्मच पास्ता लेंगे, उसके साथ हम गार्लिक ब्रेड को खाएंगे। लेकिन पीपल, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ऑलिव ऑयल, ये अकम्पेनिमेंट नहीं है, ये क्या है? ये है कॉन्डिमेंट। Yes, absolutely right. Excellent. So these are all condiment. This condiment we add in the food. मतलब इसको बिना मिक्स करे हम खा नहीं सकते। जैसे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, पिज्जा आते, हम पहले ढक्कन खोल के सबसे पहले उसके अंदर चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो ऐसे फेंक देते हैं। तो सेम वे these are all condiments. Accompaniment क्या है? साइड में आपका गार्लिक ब्रेड है या तो फ्रेंच फ्राइज है। चलो फ्रेंच फ्राइज तो बेसिकली पास्ता के साथ कभी तो आता नहीं है, बट द गार्लिक ब्रेड, yes, that's the, yeah, please carry on. सर जो जैसे आप कॉन्डिमेंट कह रहे हो, तो जैसे हम पास्ता के ऊपर पार्सले डालते हैं तो वो भी एज अ कॉन्डिमेंट ही होगा? No, that is गार्निश होगा? Yeah, that's garnish. That garnish. Remember, एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, जब एक खाना पकता है ना, खाना जब पकता है तो उसमें बहुत सारे कॉन्डिमेंट एंड अकम्पेनिमेंट होता है। उसके दो लेवल्स हैं। वन इज द प्राइम इंग्रेडिएंट, जो वहां पे जैसे समझ लो अब मुझे बिरयानी के करना है मुझको, तो बिरयानी में राइस और चिकन और समझ लो जो भी उसके अंदर राइस और चिकन इज अ प्राइम इंग्रेडिएंट, ओके। इसके बाद आएगा स्पाइसेस एंड स्पाइसेस, अब उसके होल गरम मसाला आप ऐड करोगे, सैफरन ऐड करोगे, ऑल दिस थिंग। इसके बाद आएगा आपका हर्ब्स, उसके अंदर हर्ब्स क्या डाल दो, कोरिएंडर लीव्स, ओके, यू विल ऐड सम टाइम क्लोव्स एंड ऑल, ठीक है। एंड फाइनली देयर इज अ कॉन्डिमेंट। कॉन्डिमेंट जनरली क्या होता है, आई मीन लाइक ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट। लेकिन बिरयानी का अकम्पेनिमेंट क्या है? मिर्ची का सालन या तो फिर रायता। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिए। खाने में एक प्राइम इंग्रेडिएंट होता है, उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पाइसेस, देयर इज समथिंग कॉल्ड हर्ब्स, ओके, एंड लास्टली देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्डिमेंट, और उसके साइड में जो आएगा वो नेचुरली अकम्पेनिमेंट हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा कंसेप्ट समझ में लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिजोतो, gnocchi एंड पास्ता, एवरी टाइम पीपल जस्ट इसको सोच के रखिएगा दिमाग में, कंट्रोल एस दबा के सेव कर दीजिए और डिलीट मत कीजिएगा। रिजोतो, gnocchi, pasta, I repeat again, risotto, gnocchi, pasta, when it is comes to the guest table, fork always goes on the right hand side, क्योंकि सिंपल बात है, आई थिंक निधि ने कहा था कि रिजोतो होता है स्टिकी। अब स्टिकी जो चीज होता है, यू कैन नॉट एक्चुअली हैव इट विद अ स्पून, इसलिए वो हमेशा फोक से खाया जाता है, ओके। सो रिजोतो, पास्ता, gnocchi के टाइम पे कटलरी जो मॉडिफिकेशन होगा, दैट द फोक विल ऑलवेज कम ऑन द राइट हैंड साइड, ओके। वो आप मेरा बस YouTube वाला जो वीडियो है, यू प्लीज टेक ए लुक, उसको देखिएगा। वैसे बोल के तो कुछ फायदा है नहीं, उसका व्यूज हमेशा 30 या 35 होता है, जबकि स्टूडेंट यहाँ पे 200 है। तो चलो ठीक है, वो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा है।
बट वहां पे मैंने क्लियरली इस बात को कहा है. ओके, एंड ऑल्सो मैगी के टाइम पे, नूडल्स के टाइम पे फोक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आता है. आई टेल यू व्हाई, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने ना एक बार वहां गया था, लीला का फाइनल राउंड चल रहा था, लीला चाणक्य पूरी दिल्ली में. ओवर देयर उन्होंने कहा कि प्लान अ 4 कोर्स फूड एंड बेवरेज मेन्यू, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का फाइनल राउंड था, एंड देन यू जस्ट सेट द कटलरी अकॉर्डिंगली. उस दिन मुझसे ये गलती हो गई थी. मैंने ये सोचा कि रिजोतो में ये कैसे, नॉकी में ऐसे कैसे हो सकता है कि फोक ऑन द राइट हैंड साइड में आएगा. बट लेकिन मैंने उस दिन क्या करा, मैंने स्पून को राइट हैंड साइड पे रखा एंड फोक आई केप्ट ऑन द लेफ्ट, एंड नेचुरली आई गॉट रिजेक्टेड. उस रिजेक्शन के बाद ये कहानी है 2011 की. मैंने जिंदगी में कभी मिस्टेक नहीं किया आज तक. मैं हमेशा पास्ता आते ही ऑटोमेटिकली दिमाग में स्ट्राइक करता है, ओके ठीक है अब तो मेरा फोक को इस तरफ डालना ही है. इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना. रिजोतो, नॉकी, पास्ता के टाइम पे कटलरी फोक विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड मैगी के टाइम बिकॉज आपको रोल करना है, नॉकी में आपको पियर्स करना है ऐसे. ठीक है, राइट? ओके, सो दिस इज द फैक्ट. अब आपको बस यहां से आपको जो अच्छा लगे आप 2 एग्जाम्पल या 4 एग्जाम्पल याद रखिए और फैरिनुआ के बारे में एग्जाम में लिखिए. ठीक है, सो यस प्लीज कैरी ऑन. सर पाया नहीं आएगा जो ओके प्लीज. या व्हाट पाया स्पेन की जो है, स्पेन की मतलब साइट माना जाता है. Okay, yes, that's not paella, it's Sir, called national paella. dish of Paya. It's not paella, it's known as a paella. It's paella alla Valencia, that's right. Yeah, paella is fantastic rice preparation. You can also give it as an example. Beautiful answer. Who is that lady, by the way? सर काव्या. Okay, Kavya Saxena is a beautiful answer. Yes, paella alla Valencia. That's a famous rice preparation from Spain, which comes from the Catalonia region. It is basically made with the seafood. मतलब मच्छी बिरयानी बोल सकते हो आप उसको. ओके, सो और समझ लो इंडोनेशिया में एक राइस प्रिपरेशन मिलता है, उसका नाम है नासी गोरेंग. अगर किसी ने सुना होगा तो. नासी goreng is basically made with a chicken satay and all this thing, and then you'll add a sunny side up on the top, a rice with a sunny side up basically. So these are the world के बहुत सारे ऐसे great rice preparations है जो वहाँ के famous है. But obviously gnocchi and risotto got the or pasta got the famous because India जहाँ Indians जहाँ पे involved होता है वो चीज फेमस हो जाता है हमेशा. इसलिए इंडिया इज द ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड. ठीक है, अब रिजोटो के जितने ब्रांड्स इंडिया में मिलता है उतना ब्रांड्स अभी इटली में नहीं मिलता है बिकॉज इटली से ऑलरेडी ऑरिजिनेट हुआ है. और अमेरिकन्स आल्सो ईट लॉट्स ऑफ फूड लाइक दिस. ठीक है, यस, पाएला आला वैलेंसिया. ओके, एंड पाएला आला कैटलोनिया. सो दिस इज अ वेरी फेमस फूड फ्रॉम स्पेन. स्पेलिंग इज PAELLA. It's paella, not paya. If you talk about paya, then वो हम फिर पाया नाहरिक में पहुंच जाएंगे जो हैदराबाद से आता है. ओके, so not paya, it's called paella. Okay, it's paella. All right. Sir, please repeat the spelling. It's PAELLA. Okay, गूगल में जाके एक बार पायला टाइप करके उसको सुन लेना. How does it say? Okay. So चलो, so that's it for the day. And चलो मतलब like राइस के बारे में और फैरेन्यूशियस हम लोग अभी जान रहे थे. फैरेनुआ के बारे में lots of interesting information came. So please people, मैं इतने information इसलिए ऐड करता हूँ because I don't want to make you I want to make you professionals actually. और प्रोफेशनल क्या होता है, सबको सब कुछ मालूम होना चाहिए. अब जैसे मैं आपसे पूछ लूंगा कि यूएस में बॉन्ड यील्ड राइज हो रहा है जिसके कारण शेयर मार्केट फॉल कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये बॉन्ड यील्ड से हमारा क्या मतलब है. बहुत मतलब है. ओके, बॉन्ड डील. अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को ये मालूम नहीं होगा बॉन्ड डील क्या होती है. ये आपकी गलती बिल्कुल नहीं है. इसको मत समझना कि सर ये क्या बॉन्ड डील के बारे में बोल दो एफएमबी क्लास में, जबकि ये एमबीए का टॉपिक है. लेकिन पीपल जस्ट रिमेंबर, जान के रखना बॉन्ड होता क्या है एंड बॉन्ड यील्ड के क्या होता है, जिसके कारण इंडिया इतनी अच्छी इकोनॉमी ग्रो कर रही है. बट जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस
बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ गया है, इसलिए हमारी मार्केट डेली फॉल कर रहा है. ओके, सो दिस इज द बिग प्रॉब्लम, बिकॉज हम लोग यूएस डिपेंडेंट थे, लेकिन अभी दिन ऐसा आ रहा है जब इंडिया धीरे धीरे उस यूएस डिपेंडेंट से हम बाहर निकल के आ रहे हैं. चलो ठीक है, ये तो बहुत आय की चीज है. बॉन्ड डील के बारे में आपको बोलूंगा तो आधा घंटा और लग जाएगा. वैसे मैंने आपकी संडे खराब कर दिया है, सॉरी सैटरडे खराब कर दिया. तो चलो ठीक है, तो बी प्रोफेशनल एंड लर्न ऑल दोस इंफॉर्मेशन, दैट विल बी बेटर फॉर यू. चलो ठीक है, आज हम एक सरप्राइज फ्राइडे हम देखते हैं. ओके, तो देखते हैं आज का सरप्राइज फ्राइडे. ओके, तो आरव कुमार, जाकी हुसैन एंड योगेश बीस्ट एंड आर्यन पाठक, आर यू ऑल देयर? कोई है इनमें से मीटिंग में? Nobody is there. Arav Kumar, Jaki Hussain, yeah. जी सर. Yes, you are Arav, right? Hello. Hello, Arav. Arav is there? Nobody answering anything. Chalo, ठीक है. You don't want to answer, you don't leave. Okay, people. Anybody want to pitch their idea over here? सर किसमें? There is a screen coming on in front of you. So Arav Kumar and Jaki Hussain are the restaurant manager and assistant restaurant manager of Hyatt Andaz New Delhi. Yogesh Bist and Aryan Pathak are the FM manager and executive chef of the same hotel. Now JW Marriott sells buffet at 1200 plus taxes. Hyatt Andaz sells the buffet at 1200 plus taxes. अब रिसेंट टाइम ये देखा गया है कि दिल्ली के लोग ज्यादा जेडब्ल्यू मैरियट में जा रहा है, बट अंदाज में नहीं जा रहा है. तो टास्क है इन चारों का जो अभी क्लासरूम में है, आरव कुमार, जाकी हुसैन, योगेश बीस्ट एंड आर्यन पाठक. एनीबडी इज देयर? नोबडी इज देयर. ओके, तो ठीक है, फिर अगर नहीं है तो फाइन, तो दे विल बी आल्सो मार्क एज एन एब्सेंट. इसका मतलब भी एब्सेंट है. ठीक है, फाइन, ठीक है. So no problem. You don't want to answer, you don't answer. Okay. Anybody else who want to pitch their idea on this? आपके सामने जो स्क्रीन आ रहा है उसके ऊपर. Yeah. Sir, we will offer them okay, one by one. Yeah. We will offer them complimentary drink. extra. Okay, please let one person finish. Okay, you will offer them a complimentary drink. Yes, sir. अच्छा देखो, प्रॉब्लम क्या है कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक देने में? आपका नाम क्या है आप लोगों का? सर गर्वित शर्मा. अच्छा, गर्वित शर्मा, ठीक है. देखो, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक देने में यही समस्या है. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है फ्री. अब आप प्राइस तो इंक्रीज कर नहीं सकते, लेकिन आपका ये जो कॉस्ट है वो फ्री में निकल जाएगा. जी सर. मतलब आपने समझ लो कोल्ड ड्रिंक भी दे दिया जो कि 20 रुपए का ग्लास आएगा, लेकिन वो 20 रुपए आप रिकवर नहीं कर पाओगे क्योंकि वो फेल, मतलब आपका मतलब कॉस्ट बढ़ सकता है. और कुछ आइडिया है? सर इंस्टाग्राम प्रमोशन. या प्रमोशन इज एन ऑप्शन, बट प्रमोशन में आप ऐसा क्या प्रमोट कर दोगे जो पब्लिक जेडब्ल्यू मैरियट छोड़ के हयात में आएगा? सर कुक विद द शेफ प्रोग्राम, लाइक मींस कि आप शेफ के साथ खाना बना सकते हैं या Absolutely, yes. You know. How do you know this thing? How do you know this thing? How do you know this thing? Okay. So look, yes, yeah. People, this is a nice option. Hyatt Andaz. People, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको कभी लाइफ में, मैं जिंदगी में दूसरी बार अगर मतलब जब मेरा जब नेक्स्ट when I take a next birth, I have a plan that I will work in Hyatt Andaz. इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, सुंदर कितना है वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इट्स अ ग्रेट प्लेस टू वर्क. दिल्ली में एरो सिटी जो है वहां पे है ये. तो मैं जिंदगी में दूसरी बार पैदा होकर एक बार हयात अंदाज में जरूर काम करके आऊंगा. इट्स माय ड्रीम होटल. मैंने बहुत कोशिश किया था इसके अंदर जाने के लिए, बट आई डिडंट गेट अ चांस टू एंटर. तो चलो ठीक है. तो हयात अंदाज ने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया है, शेफ एट योर डोर स्टेप. लॉकडाउन के टाइम पे इन लोगों ने क्या किया था, शेफ एट योर डोर स्टेप. मतलब शेफ लिटरली दिल्ली में
घर में जाता था और जाके कस्टमर के साथ खाना पका के आता था. And also, when lockdown gets over and then the hotel start to reopen, these people started this initiative, okay, where the guest can come cook their order with the chef on the range and then they will serve themselves. A beautiful customized service. Okay, good. One is point acceptable. Next point, anybody wants to add anything? So Nishant, my name is Nishant. Okay. Carry on, Nishant. So मैंने बताया था आइडिया इससे पहले वाला. अच्छा, ये आइडिया आपने बताया था. ओके, चलो ठीक है. निशांत, ग्रेट आंसर. ओके, नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? सर जैसे हम आप कह रहे थे कि मैरियट में सारे गेस्ट उधर ट्रांसफर हो रहे हैं और हयात रिजेंसी से जा रहे हैं, तो हम एज अ उनको डिस्काउंट भी देंगे और हम बुफे पे सर्विसेज भी बहुत अच्छी करेंगे और डिशेस को और इंक्रीज करेंगे कि गेस्ट को और अट्रैक्शन हो, कि वो और अच्छे से मतलब प्रेजेंटेशन और अच्छी करेंगे काइंड ऑफ. अच्छा, ठीक है. ये जो राहुल सिक का ना. ओके, सो people understand. या थैंक यू. या राहुल सिक का आपने जितना पॉइंट कहा है उनमें से बस मैं एक ही पॉइंट लूंगा, वो है सर्विस. सर्विस plays an important role of life. ओके, सर्विस मतलब गेस्ट अगर आपके रेस्टोरेंट में आए तो यू शुड स्पॉइल द गेस्ट. स्पॉइल का मतलब मालूम है क्या होता है? स्पॉइल का मतलब होता है, जैसे कहा जाता है, मैरियट ये कहता है कि ओबेरॉय आईटीसी ताज गेस्ट को खत्म कर देता है, स्पॉइल कर देता है. मतलब ओबेरॉय आईटीसी ताज गेस्ट को हाथ उठाने, एक्सक्यूज मी बोलने का अपॉर्चुनिटी नहीं देता है. इतना स्ट्रिक्ट है. मतलब किसी ओबेरॉयज के रेस्टोरेंट में अगर किसी गेस्ट ने ऐसा हाथ पिकअप पे कर दिया, कैन आई गेट अ कॉफी, तो देन उस एरिया का जो सेक्शन होल्डर है, इंचार्ज है, जैसे मान लो मैं हूं, तो उसकी फिर आई मीन लाइक द मैनेजर विल कम एंड गोइंग टू स्कोल्ड यू वेरी बैडली. इसका मतलब है कि गेस्ट को अगर पानी भी पीना है तो वही बस बाकी रह गया, उसको आप हाथ से जाके पानी पे कर दीजिए. तो सर्विस इज समथिंग. आप जितना भी खाना अच्छा दो, जेडब्ल्यू मैरियट से घूम के लोग आपके पास ही आएगा. ओके, राइट. यू शुड स्पॉइल द गेस्ट एक्चुअली. ओके, और एनीथिंग एल्स? Also, we can do promotion like food on the wheels. Food on the wheels means कि खाने को ट्रक में ले जाएंगे और उसका प्रमोशन करेंगे, जैसे फूड ट्रक होते हैं ना सर. अब कहाँ पे? रास्ते में? रास्ते में, रोड में कर सकते हैं सर. जैसे ये बिल्कुल नहीं भाई. हयात अगर रास्ते में जाके खाना बेचना शुरू कर दिया तो कल हयात का सीईओ वॉशिंगटन से आएगा, आके वहां का जो जनरल मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर को निकाल देगा नौकरी से. नो सर, एक्चुअली ये मेरिट करते हैं ना, मेरिट ऑन द व्हील्स करके बेंगलोर पे. यस, मैरियट ऑन द व्हील्स पे खाना. राइट. सिलिकॉन वैली है जो तो ऐसा ही कुछ उनका चुरा के. हाँ, चुरा के तो ठीक है, वो यू शुड स्टील द आइडिया. बट हयात अंदाज मैरियट की तरह इतनी छोटा ब्रांड, आई मीन लाइक मैरियट क्या है, मैरियट इंडिया में धंधा के करता है. मैरियट को स्टाफ के, आई मीन लाइक दे डोंट फील अबाउट ऑल दिस थिंग, उसको बस ग्रो करना है. लेकिन हयात ऐसा नहीं करता है. हयात इज अ कंप्लीटली कंसर्न थिंग अबाउट द एम्प्लॉयज एंड ऑल. सो फूड ट्रक का कंसेप्ट थोड़ा सा ऑकवर्ड लग जाएगा हयात के लिए. और हयात जब फूड ट्रक को रास्ते में उतारेगा, व्हाट विल हैपन दैट अगर दिल्ली में है तो ठीक है, लेकिन बाहर के स्टेट में हयात की खाना बहुत एक्सपेंसिव होगा. तो जनरली मैंने वो जेडब्ल्यू मैरियट की जो आप बात बोल रहे हो, चंडीगढ़ में एक जगह है सेक्टर 17 के, वहां पे आई हैव सीन के मैरियट का वहां पे फूड ट्रक रहता है. दे यूज्ड टू सेल द फूड फ्रॉम देयर. एक मार्गरीटा पिज्जा का प्राइस होता है 250 रुपए, बट लेकिन उसको खाने के लिए मतलब लाइक हजारों 100 लोग आते हैं. द रीजन बिहाइंड दिस, इट्स चंडीगढ़. ओके, दिल्ली में भी सेम केस है वही. ठीक है, तो चलो ठीक है, फूड ट्रक इज एक्सेप्टेबल ओनली हयात की कोई ईगो इशू ना हो तो. बट ईगो इशू होगा यहाँ पे, क्योंकि हयात वैसा ब्रांड नहीं है जैसा मैरियट है. ओके, राइट. द नेक्स्ट वन इज एनीथिंग एल्स? सब लोगों ने एक. यस प्लीज कैरी ऑन. और सर उनको लेट द लेडी स्पीक. या सर्व करेंगे इन एफएनबी जैसा आप क्या कर लोगे आप?
कुछ स्पेशल सर्व करेंगे। वापस बोल रहा हूँ, स्पेशल सब अगर आप कर रहे हो तो उसका कॉस्ट जाएगा, लेकिन ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण बिजनेस में क्रंच है कोरोना के कारण, तो आप फ्री तो कुछ दे नहीं सकते हो। ये सब फ्री नहीं, सर्व करेंगे पर पैसा लेंगे उसका, वो पैसे की तो बात ही नहीं है। पैसे तो लोगे, फिर गेस्ट बोलेगा कि कोविड के टाइम पे मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। देखो यस, जैसे ओके, प्लीज रिपीट अगेन, दैट लेडी इज ट्राइंग टू से समथिंग, प्लीज कैरी ऑन। लोग उनसे कुछ अलग कर रहे हैं, ये बात हो गई ना। Yes, it's like hatke. Now, when somebody says yes. hatke, when somebody says hatke is acceptable. होटल में गेस्ट के लिए आप कुछ हटके के करते हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्पावरमेंट। मतलब होटल का हर एम्प्लॉय एम्पावर होता है एक सर्टेन अमाउंट के लिए, 800 रुपए, 1000 रुपए, जैसे ओबेरॉयज में ये रेट था 1800 रुपीज। हम लोगों को 1800 रुपए महीने का दिया जाता था। मतलब ये कभी कैश आपके पास नहीं आएगा, लेकिन मिस्टर रजत अगर चाहेगा तो 1800 रुपीज खर्चा कर सकता है गेस्ट को खुश करने के लिए। मैंने तो बहुत खुश किया है जैसे, और वो लोग कहते थे इसको खर्चा करो। तो जैसे काव्या ने आइडिया दिया है, इस आइडिया को हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ लो राहुल ने अभी हयात अंदाज में फोन किया कि एक्चुअली, एंड काव्या पिक अप द कॉल, yes sir, how may I help you? Rahul says, I want to come to my hotel, come to your hotel in the evening for a dinner. Can you book a table for 5? So let's take an example. Rahul is coming to Hayat Andaz with his family, just to अब समझ लो कि काव्या सक्सेना ने राहुल सिक्का से पूछ लिया कि अच्छा सर, is there any special occasion that you are want to organize? No, actually, I just got a OCLD. Okay, so I want to celebrate that with my family. बस यहाँ पे काव्या सक्सेना को एक टिप मिल गया। अगर इसको अगर वो जो वहां पे रिजर्वेशनिस्ट है उसने अगर यूज कर लिया तो देन राहुल सिक्का कभी हयात अंदाज छोड़ के नहीं जाएगा। अब जैसे राहुल सिक्का होटल के अंदर आया, द फर्स्ट थिंग, राहुल सिक्का जैसी टेबल में बैठेगा उसके टेबल के ऊपर एक केक आएगा विथ रिटन कांग्रेचुलेशन मिस्टर सिक्का फॉर क्लियरिंग ओसीएलडी। बस यहाँ पे वो इतना वाव हो जाएगा, उसके बाद हयात उसको खाना खिलाए ना खिलाए उसको फर्क नहीं पड़ता। यू आर प्लेइंग विद द इमोशनल क्वोशंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और यही होता है सर्विस इंडस्ट्री। आपको इमोशन से खेलना है, जैसे पॉलिटिशियन करते हैं इलेक्शन से पहले इमोशन से खेलते हैं, आपको वैसे इमोशन से खेलना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। ये खाने का प्राइस कम करने से, डिस्काउंट करने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक तो अपना राय तभी देगा जब आपको उसको इमोशनली डिसेबल ये कर दोगे, ठीक है? तो दिस इज द फैक्ट एक्चुअली। ओके, नाइस आइडिया बट इट शुड बी मॉडिफाइड। और समझ लो कि कोई आ रहा है कि ओके सर एनी स्पेशल ऑफर, आज मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। ओके ठीक है, हैप्पी बर्थडे, एक कॉम्प्लीमेंटरी केक दे दिया। यहाँ पे आप एम्पावरमेंट टू वाउ द गेस्ट फैक्टर के लिए आप इसको कर सकते हो। दैट्स अ गुड आइडिया। एनीथिंग एल्स पीपल कैन ऐड? Sir, we can just welcome the famous YouTubers, famous YouTubers to our kitchen. So we can just invite the famous YouTubers to our kitchen. How we are just working the hygienically in the kitchen, just promoting our hygiene and how we work in the kitchen. That. ठीक है, इससे गेस्ट के माइंड में थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि चलो ठीक है, कोविड के बाद हम हयात अंदाज में जा सकते हैं। बट दैट इज नॉट ऑल एक्चुअली। आपने जैसे वो वीडियो मैंने आपको दिखाया था लीला कैंपेंसी का, ऐसा कुछ करना है यार। मुझे रेस्टोरेंट का खाना बेचना है तो मैं फूड प्रोडक्शन का क्यों दिखाऊंगा? जैसे वो आपने देखा होगा लीला कैंपेंसी का वो वीडियो में, वहां पे सर्वर जो है वो टेबल के बीच में 6 फीट डिस्टेंस के कारण स्केल मेंटेन करके बैठा है। लुक एट हाउ प्रोफेशनल दे आर। आपको लगता है इंडिया में बहुत होता होगा ऐसा? एक भी 5 स्टार होटल में गारंटी से बोल रहा हूं नहीं होता ऐसा। अरे बोलते एक काम करो, ये तू वहां ऐसे खड़ा हो जा हाथ लंबा करके, जहां पे पहला हाथ से नेक्स्ट हाथ है वही 6 फीट है, काम खत्म। या तो ये इंडिया में ऐसे काम होता है। 5 स्टार होटल छोड़ो, कोई भी जगह में जाओ। आई वाज कमिंग फ्रॉम द फ्लाइट yesterday from ग्वालियर से आ रहा था,
तो मैंने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग करना शुरू किया तो मेरे पीछे से सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्ट हो गया मेरे सामने। वो एकदम बिल्कुल एकदम जो फ्लाइट में जब सीढ़ी से जब when the people were actually मतलब like going inside the flight, they are just like a बस की तरह धक्का लगा के वो चल रहा है। जहां से मैं खड़ा हुआ देखा कि मेरे पीछे जो खड़ा था उसको थोड़ा सा शर्म आ गया, ये चलो कम से कम एक आदमी तो है जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है, तो वो मेरे पीछे से 6 फीट डिस्टेंस कर लिया। लेकिन इन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, वहां पे सीधा वो टेप लेके 6 फीट मापते हैं। तो ऐसा कुछ आप कीजिए, जैसे मान लो हेल्थ स्कैनर कोड जो कैंपस की में वो दिखा, रेस्टोरेंट में घुसने से पहले वो क्या कर रहा है, एक सेफ्टी का एक ऐप है उसके पास, वो वहां पे जैसे गूगल पे के टाइप हम करते हैं तो पेमेंट होता है, समथिंग लाइक दैट यू कैन डू। ओके, सो दैट कैन बी यू कैन यूज। सो यूट्यूबर अगर आपको करना है, यू शुड डू समथिंग लाइक इन द रेस्टोरेंट। आपका रेस्टोरेंट में फैसिलिटी क्या है? देखो, गेस्ट आपका कभी खाना पकाने का जो एरिया है वो देखने नहीं आया, गेस्ट आपका रेस्टोरेंट देखने के लिए आएगा। इसको दिमाग में सोचो, कस्टमर चाहता क्या है, ठीक है? अच्छा, देयर वाज अ लेडी हु वाज ट्राइंग टू स्पीक। ओके, ठीक है, चलो। Yes, There was sir. a lady, yeah, please, what is your idea? Yes, sir. Sir, it's about Delhi people. Like they are going to JW Marriott. So there must be a taste जो उनको JW Marriott में मिल रहा होगा। कोई तो ऐसा reason होगा. We have to find the reason first. That why they are going to JW Marriott. Then after finding that reason, we can find the solution easily because of the COVID and price of fuel. We cannot decrease the price. So first we have to find the reason, then we will find the solution easily. एकदम जिसको बोलते हैं सीधी बात, नो बकवास। जो who is this by the way? अंकिता बिस्वाल, right? आकांक्षा शर्मा। अच्छा, आकांक्षा शर्मा ने जो कहा अभी एकदम सीधी बात, नो बकवास। आकांक्षा शर्मा, I think you are the right restaurant manager for this department. आकांक्षा शर्मा भी क्या कर लेगा, यही बेसिकली होता है जो आकांक्षा ने अभी कहा है, यही एक्चुअली हर होटल्स में होता है। आकांक्षा क्या होगा, आप समझ लो ऑफ हो गया, आज समझ लो सैटरडे है और आकांक्षा का आज ऑफ है और काव्या का ऑफ है, तो आकांक्षा बोलेगा चलो काव्या एक काम करते हैं, आज का जो लंच है ना हम JW मैरियट में खाते आते हैं। यार बहुत पैसा लग जाए, कोई बात नहीं, चलो एक चाय पी के कॉफी पी के आ जाएंगे रेस्टोरेंट में बैठ के। तो नाउ आकांक्षा शर्मा एंड काव्या विल गो फॉर अ डिनर एट JW मैरियट, और फिर आकांक्षा को सब खबर समझ में आ जाएगा। लेकिन आकांक्षा विल नेवर से दैट आई एम कमिंग फ्रॉम हयात अंदाज। I say, okay, I'm an employee of Deloitte, I'm an employee of Apple, something like this. तो जैसे आकांक्षा उस रेस्टोरेंट के अंदर जाएगा और काव्या के साथ बैठ के अगर एक कॉफी भी पिएगा ना, तो वहां से उसको समझ में आ जाएगा कि what is the JW Marriott is actually doing, और उसके बाद मैं वापस आऊंगा नेक्स्ट दिन संडे को रेस्टोरेंट में, और फिर वो मैं इनिशिएट ये करने चाहूंगा कि क्या चेंज करने वाला। दिस इज अ फैंटास्टिक आंसर, आई मीन सॉल्यूशन टू ऑल। इसके बाद ही हम सोच सकते हैं यूट्यूबर, स्कैन कोड, वाओ द गेस्ट विद एम्पावरमेंट, प्रमोशन, फूड ऑन द कार्ट। Yes, sir. Why actually they are attracted to JW Marriott? Not Hyatt Andaz. Yes. ठीक है। So this is the main reason what she has picked up. सब बात की एक बात, पहले आप अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। Once you identify the problem, if there is a problem, there is an opportunity. उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी निकालोगे। आप अपनी अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको नया आइडिया क्रिएट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दैट अ केस स्टडी ऑफ योर एप्पल कंपनी, IBM, HP और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट सब बना था पहले, मॉनिटर इतना बड़ा, CPU इतना बड़ा, UPS ये। अब एक दिन एक आदमी आया, उसने थोड़ा सा कैलीग्राफी सीख लिया बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, और उस कैलीग्राफी बेसिकली एन हैंड राइटिंग ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑल एवरीथिंग। कैलीग्राफी सीख लो, सोचा कि काम करते हैं, ये सारे डब्बे को एक बक्से के अंदर हम डाल देते हैं। वहीं से पहली बार जाया था iMac और मैकिंटॉश एक्चुअली, और वही था स्टीव जॉब्स, एप्पल। और आज देखो हर बैग में, हर जगह हम इस छोटे से डब्बे को लेके चलते हैं। सो ये होता है अपॉर्चुनिटी। मैकिंटोश, या मैकिंटोश। देयर इज अ फेमस मूवी बाय YouTube में अभी है, उसका नाम है स्टीव जॉब्स।
स्टीव जॉब्स, नॉट दैट द पार्ट 1, द केट विंसलेट का जो मूवी है वो मत देखना, ऑस्टन क्लचर का जो है द मैन विद दैट बियर्ड, वो वाला जो स्टीव जॉब्स है वो देखना। दैट्स अ राइज ऑफ एक्चुअली एप्पल। एप्पल कहाँ था और कहाँ से क्या पहुंच गया। सो एक छोटा सा गराज के अंदर एप्पल कंपनी था, उसके बाद देखो आज वो गैरेज से कहाँ पहुंच गया। तो दैट्स अ राइट आंसर। यस, सब बात की एक बात, पहले मैं प्रॉब्लम को सोचूंगा क्या है जेडब्ल्यू मैरियट में, उसके बाद मैं सॉल्यूशन लेके आऊंगा। और सॉल्यूशन क्या है, ये जो काव्या ने कहा, ये जो निशांत ने कहा, सारे इसके सॉल्यूशन है, इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट आ जाएगा। ओके राइट, सो दैट्स अबाउट इट। और किसी का कोई आइडिया है? सर अगर हम उनके होटल में जाते हैं तो वो क्या हमें जानते नहीं है कि मैं F&B मैनेजर हूँ और ये रेस्टोरेंट मैनेजर है? तुम अगर बोलने की कोशिश कर लोगे तो वो जान जाएगा। ओके सर वैसे तो बड़े होटल्स के F&B मैनेजर या रेस्टोरेंट मैनेजर का आपस में पता होता होगा। पता तो है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है तुम किस टाइम जा रहे हो उसके ऊपर। देखो एरो सिटी जो एरिया है वहां पे 8 5 स्टार होटल है, और 8 5 स्टार होटल के अंदर ऑन एन एवरेज 3 रेस्टोरेंट है। तो 24 रेस्टोरेंट जो है वो तो एरो सिटी के अंदर ही है। 24 रेस्टोरेंट के 24 रेस्टोरेंट मैनेजर और 24 असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर है। या थोड़ा सा तो मुश्किल है, याद रखना, नाम और फेस एक साथ, ठीक है। So I don't think that Akanksha Sharma will going to face a problem if he goes as a restaurant manager over there. Sir, instead of going खुद से तो हम किसी और एम्प्लॉय को भी तो भेज सकते हैं ना उसके लिए। ये बात भी सही है, ये बात भी सही भेज सकते हो। नहीं तो आजकल तो चलो मास्क तो आ ही गया, इफ यू वेयर अ मास्क एंड गो देन नोबडी एबल टू नो यू, ठीक है। यस सर, इट्स अ बिग एडवांटेज। मास्क का ये बहुत अच्छा सुविधा हो गया है, कोई किसी को पहचानता ही नहीं है। बट यू नो एक एम्प्लॉय जिस तरह से उस सिचुएशन को देखेगा, एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर यू विल टेक इट इन अ वेरी बेटर वे। आईज का फैक्टर होता है, मैच्योरिटी का फैक्टर होता है, दिस इज द मेन थिंग। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू नाउ। ओके, तो ठीक है, अगर किसी का कोई और आइडिया है, somebody want to add? Sir, can we say this that we should ensure that we are targeting the right audience? राइट ऑडियंस मतलब क्या है? सर मतलब क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हम ऐसे चूज करेंगे कि जिससे हमको प्रॉफिट अर्न हो। अच्छा ठीक है, तो फिर आपको खाने के स्टाइल में चेंज लेके आना होगा, फिर याद रखना। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब है जैसे कि फिर से मैं आ जाता हूँ, मैंने वो असाइनमेंट क्यों दिया था अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया कि ये मैरियट और एकॉर का करके मेरे को क्या फायदा है। मुझे ही मालूम है कोई फायदा नहीं है, लेकिन फायदा आपको एक जगह है। क्या है फायदा? मार्केट सेगमेंटेशन। आपको वहां पे दिख गया होगा मार्केट सेगमेंटेशन। मैरियट का था क्लासिक, डिस्टिंक्टिव, मिड क्लास, लग्जरी क्लास, लीजर क्लास, मिलेनियल्स। मैंने बस इसलिए दिया था। मार्केट सेगमेंटेशन हमें मालूम करना है। क्या होता है, हम खाना निकाल देते हैं, हम ये नहीं सोचते कि खाना है किस लिए, किस आदमी के लिए है। अब जो यहाँ पे ग्वालियर से है तो वो मालूम होगा, चौपाटी बोल के एक जगह है ग्वालियर में, जहां पे मतलब लाइक द बेस्ट स्ट्रीट फूड आई एवर हैड आफ्टर चंडीगढ़। ओके, तो वहां पे आप कभी शाम को जाके देखो, द एज ग्रुप ओवर देयर इज फ्रॉम 18 to 30। यार वो फास्ट फूड तभी तो है, वहां पे बुढ़े थोड़ी जाएंगे। अब इस एज ग्रुप को हम कहते हैं मिलेनियल्स। तो अगर हयात अंदाज ऐसा कुछ कर रहा है, इट इज फॉर द मिलेनियल्स, तो आपको फिर खाने में चेंज करना पड़ेगा। अब आप मिलेनियल्स को सांबर चावल आप दे नहीं सकते, मिलेनियल्स को आपको देना होगा रिजोतो बिरयानी, या तो पास्ता विद गार्लिक ब्रेड, ओके, या तो आपको देना होगा टर्की सैंडविच, समथिंग लाइक दिस। ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड chicken kathi roll, all this thing. This is all trendy food with the fast food, with the chicken customer style, with the millennial customer choice. So now if you want to do this thing, that is also good. तो ये आप यहाँ पे मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, तो मिलेनियल्स के लिए दैट इज ओके, दैट इज फाइन। खाने के स्टाइल में आपको चेंज लेके आना होगा। ओके सर, we can do one thing. Yes please.
सर जैसे कि हम कोई ओकेशन होता है तो स्पेशल कुछ डेकोरेशन करते हैं सर। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मार्केट सेगमेंट ऊपर बढ़े तो हम होटल में कुछ इस तरीके का डेकोरेशन करें, बाहर से ऐसे कस्टमर को दिखाएं कि हमारे पास कुछ स्पेशल है। देखो इसमें एक फैक्टर फिर से आ जाता है, कॉस्ट। डेकोरेशन करने के लिए आपको कॉस्ट चाहिए होगा, तो चलो ठीक है। एक आपका फिर भी मैं पॉइंट ये ले सकता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे मेन चीज, नेक्स्ट वीक से हमारे देश में होली का एक फीवर शुरू हो जाएगा। मंडे से होली का फीवर शुरू हो जाएगा। आप होली फूड फेस्टिवल रख दो आपके होटल में। अच्छा, होली में मेन खाना क्या क्या होता है, कौन बोल सकता है? सर होली में सर बिरयानी गुजिया। गुजिया, यस। एंड और क्या हो सकता है? होली बेस्ड फूड। दही बड़ा, दही बड़ा। भल्ला, ओके। अच्छा, नेक्स्ट। सर वो जो निमकी बनाते ना डायमंड शेप में। हाँ, डायमंड शेप में निमकी, राइट? यस, ठंडाई। सर मालपुआ या मालपुआ, ओके। और सर लस्सी कचौरी। लस्सी कचौरी। ठंडाई। सर डुस्का। सॉरी, और क्या है? भांग भांग। डुस्का। पुआ पुआ। डुस्का। Duska, yes. Duska is a one actually that can be used. Now please understand people. अच्छा आपने बर्फी, अच्छा आपने एक ट्रेंड बर्फी also expect। अच्छा आपने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया है, या तो ये जितने खाने का नाम लिए गए अभी तक, ये मैक्सिमम या तो लिक्विड फॉर्म में है या तो फिर मीठा फॉर्म में है। तो क्या रीजन है इसके पीछे? क्यों सारे खाना या तो होली एक खुशियों का त्योहार है सर, इसीलिए। अच्छा, तो हम खुशी के वक्त सर कुछ मीठा खाते हैं। हाँ, ये बात से। हाँ, तो क्या था वो? राइस की मीठा होता है, राइट? ओके, हाँ, कुछ मीठा हो जाए सर। हाँ, कुछ मीठा हो जाए, बात बिल्कुल नहीं। ये आइडिया का ये आइडिया जाता है ओनली अंकिता बिस्वाल को। पहले क्लास में उन्होंने कहा था कि खाने के एंड में डेजर्ट क्यों है, क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाना चाहिए। या एक और रीजन है, वो शायद अभी तक किसी ने पकड़ नहीं पाया। यार खुशी होगा तो बस हम मिठाई खाएंगे, हाँ? तो हम चिकन नहीं खा सकते, बिरयानी नहीं खा सकते। तो खुशी में हम चलो मीठा खा लेंगे, ठीक है, लेकिन और क्या रीजन है इसके पीछे? क्यों यहाँ पे? सर हम तो चिकन भी खाते हैं खुशी में। नहीं, खुशी में सर चिकन भी ज्यादातर ये बाइट साइज वो हैं, जितना कहा कि होली में सब लोग सर बाहर रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो उन्हें क्विक चाहिए होता है कुछ। यस, दैट इज आल्सो नाइस रीजन। और एक कारण इसलिए है, ये एक्चुअली एक मार्केट सर्वे रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओबेरॉयज ने एक बार एक मार्केट सर्वे किया था कि होली में आप किस तरह से खाना पसंद करोगे, तो पब्लिक ने सीधा आंसर दिया था। वो ये कहा था, बोले देखो होली जब इंडिया में होता है तब इंडिया में आता है समर, गर्मियों के टाइम पे होली होता है, खेल खेल के हम थक जाएंगे, ओके, तो हम क्या जाके अभी बिरयानी खाएंगे, चिकन खाएंगे? नहीं, हम कुछ ठंडा के टाइप खाएंगे। तभी लस्सी आ गया, दही भल्ला आ गया, ठंडाई आ गया, और कुछ बर्फी आ गया। लेकिन यस, शुगर रश मिलता है सर उससे। yes, शुगर रश मिलता है, एब्सोल्युटली राइट। But yes, there are lots of other things, but generally try to avoid, because India is a country where there is a खाने के साथ इमोशन और रिलीजियन भी ऐड है। तो नेवर ऑफर होली फेस्टिवल में आप कभी चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी मत रख देना। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ओके। सो यस, यू शुड बी ऑलवेज पुट अ होली फेस्टिवल विद अ वेज ऑप्शन, दैट कैन बी ऑल्सो बी गिवन। यहाँ पे ठंडाई आप सब कुछ दे सकते हो, होली फूड फेस्टिवल कैन बी यूज, ठीक है। तो यही है कहानी एक्चुअली पीपल। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, जब आपको टाइम मिले, व्हेन यू गेट अ टाइम, प्लीज इकोनॉमिक टाइम्स हॉस्पिटैलिटी पेज बोल के आप गूगल में टाइप करना। यस प्लीज कैरी ऑन। सर मेरे पास एक आइडिया है, मतलब ये सही है कि नहीं, लेकिन जैसे कि हम गेम कराते हैं, जैसे कि हम गेम करा सकते हैं जैसे होटल्स में कि हाँ, अगर ये चीज करेंगे तो आपको ये चीज फ्री मिलेगा। अच्छा, ऐसे में इसका मतलब आप तो कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगा? नहीं कॉस्ट के अंदर ही नहीं, व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, वो ये बोल रहा है कि उसका आइडिया के साथ मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। दैट लेडी, वो व्हाट शी इज ट्राइंग टू से कि उस गेम, वो जो बोल रहे फ्री का पैसा ना, वो गेम का रजिस्ट्रेशन प्राइस से वो
पैसा उसका आ जाएगा। वो ये कहेगा कि ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन होगा आपका 1200 रुपए का, अगर आपने जीत लिया तो आपका बुफे हो गया फ्री। ओके, तो पता है क्या होता है, समथिंग लाइक दिस। तो मालूम है क्या होता है इसमें, ये जो जीतने का जो खुशी है, वो इमोशन गेस्ट को अंधा कर देगा कि ये जो हयात अंदाज है वो एक्चुअली तुम्हारे 1200 रुपए से तुमको खाना खिला रहा है, बट लेकिन उस टाइम वो भूल जाएगा व्हेन ही वन द मैच। ठीक है, दिस द फैक्ट, दिस वे यू कैन आल्सो डू, बट इसमें गेम प्लानिंग बहुत ध्यान से करना होगा। अगर सारे जीत गए तो होटल को थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके, तो ऐसा रखना चाहिए जहाँ पे गेम बॉन्डिंग, सॉरी बॉन्डिंग वाला गेम जिसमें ज्यादा से ज्यादा ना जीत सके, मिनिमम चीजें। या आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत सारे गेम्स हो सकता है, तंबोला हो सकता है, बहुत सारे गेम होटल में मैक्सिमम होता है। ऐसे आप गेम रखिए, यू कैन आल्सो डू। और समझ लो कि गुब्बारे आप लेके आ गए विद द कलर्स एंड ऑल, देयर इज समथिंग। सर म्यूजिकल चेयर कैन आल्सो बी डन। होली का सबसे फेमस गेम है ये म्यूजिकल चेयर। ओके, दैट कैन बी आल्सो डन। तो म्यूजिकल चेयर में आपका ये एक ही आएगा, या फिर लास्ट 3 को आप ले लो। तो दिस इज ऑल दिस थिंग आइडियाज पीपल। चलो ठीक है, अब मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि इकोनॉमिक टाइम्स बोल के जो हॉस्पिटैलिटी पेज आता है उसका एक इकोनॉमिक टाइम्स बोल के, उसमें आप जाके ऐसे सिचुएशंस वहां पे आपको दिखेगा, तो प्लीज उसको देखिए। क्योंकि देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपसे कैंपस इंटरव्यू में शायद ये नहीं पूछा जाएगा कि पास्ता का अकम्पनीमेंट क्या है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि हाउ डू यू ऑर्गेनाइज एन इटालियन फूड फेस्टिवल इन अ सिटी लाइक ग्वालियर। ग्वालियर में आप इटालियन फूड फेस्टिवल कैसे करा सकते हो, लेकिन ग्वालियर में इटालियन फूड फेस्टिवल करना एक बहुत ही रिस्की फैक्टर है। ओके, व्हेयरएज दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, चंडीगढ़, जयपुर में कर लो, यू हैव अ गेस्ट, लेकिन ग्वालियर में इटालियन फूड फेस्टिवल, माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। ठीक है, तो दैट विल गोइंग टू बी वेरी टफ। तो आपसे ये कैंपस इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तैयार होके रहिएगा। और ये तभी आएगा जब आपके पास खाने का नॉलेज एंड एट द सेम टाइम इटालियंस लोगों के बारे में आपको अगर थोड़ा जान पाओगे तो देन ओनली यू विल गेट दिस थिंग। और ग्वालियर के लोगों के बारे में अगर आप जान पाओगे तो ठीक है। जैसे समझ लो, कल एक न्यूज पेपर में आया था कि ग्वालियर इज गोइंग टू बी अ म्यूजिक सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके लिए कुछ, जैसे हमारे ग्वालियर में क्या है कि तानसेन का इट्स अ बर्थ प्लेस, सो इट इज गोइंग टू बी द, इट्स ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, बट नाउ इट इज गोइंग टू बी अ म्यूजिक सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अभी लेकिन उसका अप्रूवल आएगा, दैट विल नॉट हैड कम येट। ओके, ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद हम नेक्स्ट सरप्राइज फ्राइडे को देख लेते हैं। तो हमारा सरप्राइज फ्राइडे नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हमारा टीम है अभय चांद, अभय शर्मा, यश मोहन श्रीवास्तव एंड यश सोनी। ये लोग अगर मीटिंग में है तो ठीक है, नहीं तो फिर पीपल इफ यू वांट यू कैन टेल देम और आई विल आल्सो सेंड इट ऑन द ग्रुप। केस स्टडी ये है, अगर आप खजुराहो में जाओगे तो देयर इज ओनली वन 5-star होटल व्हिच इज नोन एज रेडिसन ब्लू, एंड रेडिसन ब्लू इज अ मोनोपोली ओवर देयर। होटल में अगर वहां पे कोई फॉरेनर्स आता है, बिकॉज इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, whenever a foreigners come, everybody straight away goes to Radisson Blu. Suddenly Oberoi's आ जाता है। Now generally a brand value को देखते हुए all the employees will try to go over there for the better future and for the better salaries, better bonus and all. क्योंकि इन सब चीजें जो है वो मैरियट ओबरॉयज के अच्छे हैं। सैलरी के मामले मेहनत तो भयंकर है ओबरॉयज में, but at the same time they give you good pay, they also give you, I mean obviously Oberoi is just like a ब्रांड। इसका मतलब है कि आपके जेब के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड है, आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक है, लेकिन आपके जेब में अगर अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड नहीं है तो आपके वॉलेट की वैल्यू नहीं है। तो ओबरॉयज का मतलब है अमेरिकन एक्सप्रेस। ओके, क्योंकि इसमें क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्वालिटीज के लिए हमेशा दुनिया में जाना जाता है। तो सडनली क्या हुआ, अब फैक्टर कुछ और है, आपके एम्प्लॉइज चाहता है कि वहां पे काम करना। एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर और एन एफएमबी मैनेजर आपको क्या करना है,
आइडिया सब सोचिएगा, बट यस, अभय चांद, अभय शर्मा एंड यश मोहन श्रीवास्तव हैज द जॉब टू डू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। ओके, ठीक है, राइट, तो दैट्स अबाउट इट। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो राइट नाउ। Anybody has What got a is question? rise bond? What you just told us previously, sir. Rise Okay. bond जो आपने बताया था, rise bond वो क्या है? Short में बता दीजिए। Yield, अच्छा, rise of yield। ओके, देखिए सुन लीजिए इसको, मैं थोड़ा सा एक बार जस्ट अ मोमेंट, लाइक प्लीज डाउनलोड दैट एंड देन या यील्ड क्या होता है समझ लो। यील्ड होता है इंटरेस्ट रेट। अब हमारे देश में या फिर कोई भी देश में बॉन्ड्स होता है। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड मतलब है, समझ लो सरकार को एक रास्ता बनाना है ग्वालियर टू दिल्ली, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, उसको चाहिए फंड्स, पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहां से लाएगा? तो सरकार क्या करता है, एक सर्टिफिकेट इशू करता है। जैसे समझ लो इंडिया में ऐसे बहुत सर्टिफिकेट्स है, उनमें से एक होता है किसान या बोरोइंग सर्टिफिकेट, या बोरोइंग सर्टिफिकेट। जैसे कि समझ लो दैट देयर इज